چھوڑتے جا رہے ہیں، اور اس کی خاص وجہ ہے جو بائبل مقدس پڑھنے والے لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ کیوں چھوڑی جاتی ہیں. کچھ حوالے چھوڑ دیے جاتے ہیں، کچھ ایتیں چھوڑ دی جاتی ہیں، اور اس کی کچھ خاص وجہ ہوتی ہے. بائبل مقدس دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جو سچائی سے بھری ہوئی ہے، جس میں ہر کسی کا گناہ لکھا ہوا ہے. اگر کسی نبی نے، پیغمبر نے، کسی نے بھی گناہ کیا ہے تو وہ بھی اس میں قلم بند ہے. تو کسی جگہ پہ جا کے پھر ہمیں ان چیزوں کو کیا کرنا چھوڑنا پڑتا ہے، ان کو چھوڑنا پڑتا ہے. اسی طرح ہم کہاں پہ پہنچے یاد ہے کسی کو؟ 19 باب پہ پہنچے تھے، اور 19 باب کا پہلا حصہ جو ہے وہ ہم چھوڑ دیں گے. پہلی آیت سے لے کے 11 آیت تک چھوڑ دیں گے، کیونکہ یہاں پہ سدوم کا گناہ ہے، اس کی غلطی ہے. تو اس کو عام لوگوں کے سامنے پیش کرنا مشکل ہوتا ہے. آپ خود سٹڈی کر سکتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی جن کو چھپانا پڑتا ہے کہ ان کا گناہ کیا تھا. اس لیے اس کو ہم چھوڑیں گے اور 12 سے شروع کریں گے. جی پڑھیں 12 سے. تب ان مردوں نے لوط سے کہا، کیا یہاں تیرا اور کوئی ہے؟ دماد اور اپنے بیٹوں اور بیٹیوں اور جو کوئی تیرا اس شہر میں ہو، سب کو اس مقام سے باہر نکال لے جا. سب کو اس مقام سے باہر نکال کے چلا جا. وہ اصرار کرتے ہیں، جو فرشتے آتے ہیں وہ اصرار کرتے ہیں کہ اگر تیرا کوئی دماد، تیرا کوئی بیٹا اگر اور اس شہر میں کوئی رہتا ہے تو تو ان کو لے کے شہر سے باہر چلے جا، کیونکہ بہت جلد اس شہر کو ہم نیست و نابود کرنے والے ہیں، ختم کرنے والے ہیں. کیونکہ خدا تھوڑا سا پیچھے جب ہم جاتے ہیں تو خدا ابراہیم کے پاس آتا ہے، خدا اور 2 فرشتے، اور خدا کو وہ کھانا کھلاتا ہے، اور خدا اس راز کو بتا دیتا ہے کہ ہم سدوم کو تباہ کرنے جا رہے ہیں. کیونکہ سدوم کے گناہ کی جو بلبلہ ہے، جو وہ گناہ کر رہے ہیں، جو وہ بدی کر رہے ہیں، وہ میرے حضور پہنچ گیا ہے. اس کا شور میں نے سنا ہے، اور اب میں آیا ہوں کہ اس کو تباہ کر دوں. لیکن پھر بھی خدا کہتا ہے کہ میں آیا ہوں، لیکن میں دیکھوں گا اگر تو جو کچھ میں نے سنا ہے اس کے مطابق وہی کچھ ہوا تو پھر تو میں اس کو تباہ کر دوں گا، اور اگر نہیں تو پھر چھوڑ بھی دے گا خدا. پھر ابراہیم اظہار کرتا ہے کہ خداوند اگر 50 وہاں پہ ایماندار نکل آئے تو مار دے گا سب کو. اس نے کہا نہیں. کرتے کرتے 10 پہ آ کے بات ختم ہوتی ہے. خدا کہتا ہے اگر 10 لوگ بھی ایماندار وہاں پہ نکل آئے تو میں اس ملک کو، اس شہر کو کیا کروں گا؟ چھوڑ دوں گا، میں نہیں تباہ کروں گا. اب خدا ابراہیم سے باتیں کر کے واپس چلے جاتا ہے، اور فرشتے جو ہیں وہ سدوم میں پہنچتے ہیں. اور جب سدوم میں پہنچتے ہیں، جو میں نے حوالہ چھوڑا ہے پہلی ایسے جب پڑھتے ہیں، تو جب وہ فرشتے وہاں پہ پہنچتے ہیں تو جو بدکاری خدا نے سنی تھی وہی بدکاری اس کو فرشتوں کو نظر آتی ہے. لیکن لوط ان کو اپنے گھر میں پناہ دیتا ہے. اس لیے یہ مہربانی جو کی جا رہی تھی، ایک تو ابراہیم کی دعا تھی کہ ابراہیم نے اصرار کیا تھا کہ خداوند اگر وہاں کوئی نیک نکلا ہے تو چھوڑ دے گا نہیں ان کو. تو خدا نے کہا 10 نکلے تو چھوڑوں گا، لیکن وہاں 10 بھی نہیں نکلے. لیکن اس کے باوجود لوط کے گھرانے پر خداوند نے مہربانی کی اور اس گھرانے کو کیا کیا؟ چھوڑ دیا. آج خدا ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی کرتا. خدا نے کہا کہ میں تباہ کر دوں گا، اور پھر فرشتوں نے لوط سے کہا اگر تیرا کوئی رشتہ دار یہاں پہ ہے، کوئی بھی ہے، تو ان کو لے کے شہر سے کیا کر نکل جا، کیونکہ اس کو ہم نیست کرنے والے ہیں. اور پھر کی پڑھیں آگے. کیونکہ ہم اس مقام کو نیست کریں گے، اس لیے کہ ان کا شور خداوند کے حضور بہت بلند ہوا ہے، اور خداوند نے اسے نیست کرنے کو ہمیں بھیجا ہے. تب لوط نے باہر جا کر اپنے دمادوں سے، جنہوں نے اس کی بیٹیاں بیاہی تھی، باتیں کی اور کہا کہ اٹھو اور اس مقام سے نکلو، کیونکہ خداوند اس شہر کو نیست کرے گا. اب لوط اپنے دمادوں کے پاس جاتا ہے تو ان کو جا کے بتاتا ہے کہ اس شہر کو چھوڑ دو، کیونکہ اس شہر کو خدا تباہ کرنے والا ہے، برباد کرنے والا ہے. تم میرے ساتھ چلو. لیکن وہ جو اس کے دماد تھے وہ اس کو مذاق والی بات سمجھتے ہیں. ویسے ہی جیسے نوح کے دور میں
नूह कश्ती बना रहा था और लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। इसी तरह यहाँ पर भी वाकया होता है कि उसके दामाद जो है वो क्या कहते हैं, पढ़े जरा जी। और इस मकाम से निकलो क्योंकि खुदावंद इस शहर को नेस्त करेगा। लेकिन वो अपने दामादों की नजर में मिज़हेक सा मालूम हुआ। मिज़हेक सा मालूम हुआ, मजाक उनका बन गया। उसने उन्होंने कहा मजाक दिया गल्ला बाबा ते एवं ही लगे। ऐसे ही आके हमें कह रहा हमारा सुसर जो है मजाक शायद कर रहा है, उनको मजाक बात लगी, लेकिन ये बात होने वाली थी। ये आगे पढ़े जरा। जब सुबह हुई तो फरिश्तों ने लूत से जल्दी कराई और कहा कि उठ अपनी बीवी और अपनी दोनों बेटियों को जो यहाँ है ले जा। ऐसा ना हो कि तू भी इस शहर की बदी में गिरफ्तार होकर ऐसा ना हो कि तू भी इस शहर की बदी में गिरफ्तार हो जाए, तू भी इनके साथ मारा जाए। कई बार हम लोग ठीक होते हैं लेकिन हमारे घराने जो हैं वो अगर गलतियां करते, कई बार मेरे पास लोग आते हैं कि जी मैं तो कभी दिवे नहीं पाले, मेरा फलाना पालदा रहा, लेकिन घराना किसका होता है, वही फंसा वही होता है। इसी तरह यहाँ पे भी लूत को कहा जाता है कि ये ना हो कि इस शहर की बदी में तू भी गिरफ्तार हो जा, तो इसलिए फौरी तौर पर इस इलाके को क्या कर दे, खाली कर दे। आज हमें भी जरूरत है हम अपने साथ देखें, अगर हमारे साथ ऐसी कोई बदकारी हो रही है, हमारे घर में कोई ऐसे लोग रहते हैं जो गलत काम करते हैं, तो हमें उनसे किनारा करने की जरूरत है, उनके साथ रहने की जरूरत नहीं। यहाँ में बाइबल मुकद्दस बार-बार हमें हवाले जात मिलते हैं, लिखा है कि तू इनको क्या कर दे, छोड़ दे, कहीं ये ना हो कि इनकी बदकारी की सजा तुझे भी मिल जाए। कई बार यही होता है कि हम ईमानदार होते हैं, हम घर चर्च में आते हैं, हम खुदा के साथ जा रहे होते हैं, लेकिन हमारे घराने की वजह से हमें भी सजा मिलती है। आज जरूरत है कि हम अपने घरानों के लिए दुआ करें, खुदा से गिड़गिड़ाएं, खुदावन मेरे घराने को माफ कर, शायद आपकी दुआ से आपका घराना बच जाए। वैसे ही जैसे इब्राहिम ने दुआ की तो उसका घराना बच गया। लूत जो था वो उसके घराने का फर्ज था। पढ़ेंगे आगे थोड़ा सा और। मगर उसने देर लगाई तो उन मर्दों ने उसका और उसकी बीवी और उसकी दोनों बेटियों का हाथ पकड़ा। यहाँ पे लगता है कि लूत का भी दिल नहीं चाह रहा था उस इलाके को छोड़ने, दिल लग गया था उसका, शायद वो उसको छोड़ना नहीं चाह रहा था, इसलिए देर लगा रहा था। लेकिन जब उन्होंने देर लगाई तो फरिश्तों ने क्या किया, उनके हाथ पकड़े और उनको खींचते हुए उस इलाका से बाहर ले गए। और फिर क्या, पढ़े जरा आगे थोड़ा सा और। क्योंकि खुदावंद की मेहरबानी उस पर हुई और उसे निकाल कर शहर से बाहर कर दिया। और यूं हुआ कि जब वो उनको बाहर निकाल लाया तो उसने कहा अपनी जान बचाने को भाग, अपनी जान बचाने को भाग, जितनी तेज भाग सकता है भाग, क्योंकि अब वक्त नहीं है, क्योंकि इनकी बदकारी जो है वो बिल्कुल अब हो चुकी है, आसमान पे इनकी आवाज जा चुकी है और खुदा किसी वक्त भी इनको तबाह करने के लिए हमें हुक्म दे देगा और हमने इनको तबाह कर देना। तू भाग, जितनी जल्दी भाग सकता है, दौड़ लगा, जल्दी से उस पहाड़ पे चले जा, क्योंकि उस इलाके के जितने शहर थे खुदा ने सारे के सारे तबाह करने थे, कोई जगह खाली नहीं छोड़नी थी। इसलिए खुदा उसको कहता है उस सामने वाले पहाड़ पे चले जा, उस पहाड़ पे जाके रुक जा, वहां पे तू बच जाएगा। लेकिन इब्राहिम लूत क्या कहता है, जी पढ़े जरा। ना तो पीछे मुड़कर देखना और ना कहीं मैदान में, ना तू पीछे मुड़ के देखना, ना मैदान में ठहरना, उस पहाड़ को चला जा, उस पहाड़ को चले जा, ता न हो कि तू हलाक हो जाए, ता न हो कि तू हलाक हो जाए। जी आगे। और लूत ने उनसे कहा कि ऐ मेरे खुदावंद ऐसा न कर, देख तूने अपने खादम पर करम की नजर की है और ऐसा बड़ा फजल किया कि मेरी जान बचाई। मैं पहाड़ तक जा नहीं सकता, मैं पहाड़ पर नहीं जा सकता, तू ऐसे कर, ये सामने जो शहर है इसमें मैं चले जाता हूँ, फिर वही बदकारी वाले शहर में जाऊंगा। मैं नहीं छोड़ सकता, मेरा दिल नहीं चाहता मैं छोड़ के चले जाऊं। कई बार हम भी ये गलतियां करते, नहीं मेरा दिल नहीं करता, खुदा के साथ चलते चलते भी हम थोड़ी थोड़ी गलतियां करते रहते, दिल नहीं करता कि पूरे तरीके से खुदा के साथ चले। खुदा हुक्म दे रहा है कि छोड़ के चले जा, उस पहाड़ पे जाके रुक जा, लेकिन कहता नहीं तू बड़ी मेहरबानी की है, उसको याद करवाता है कि तूने मेहरबानी की इसलिए तू मुझे उस शहर में जाने की इजाजत दे दे। हालांकि खुदा ने उस शहर को भी तबाह करना था, लेकिन खुदा इब्राहिम की दुआ का भी जवाब देना चाहता था, इसलिए जहां लूत जाएगा उस शहर को छोड़ना था। जी आगे पढ़े जरा। कहीं ऐसा न हो कि मुझ पर मुसीबत आ पड़े और मैं मर जाऊं। देख ये शहर ऐसा नजदीक है
कि वहां भाग सकता हूँ और ये छोटा भी है, इजाजत हो तो मैं वहां चला जाऊं, वो छोटा सा भी है और मेरी जान बच जाएगी। उसने उससे कहा कि देख मैं इस बात में भी मैं तेरा लिहाज करता हूँ, फिर भी मैं तेरा लिहाज करता हूँ। हालांकि मैं इस वक्त इस पूरे इलाके को तबाह करने आया हूँ, मैं इस शहर को भी नहीं छोड़ने वाला था, लेकिन फिर भी मैं तेरा लिहाज कर लेता हूँ। एक तो इब्राहिम की दुआ थी, उसकी इल्तिजा थी, इसलिए खुदा के फरिश्तगान जो हैं वो कहते हैं फिर भी मैं तेरा क्या करता हूँ, लिहाज करता हूँ, क्या चले जाओ उस शहर में। जी जाओ, पढ़े जाके आओ। मैं इस बात में भी तेरा लिहाज करता हूँ कि इस शहर को जिसका तूने जिक्र किया गारत नहीं करूंगा। जल्दी कर और वहां चला जा, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता जब तक कि तू वहां पहुंच ना जाए। मैं कुछ नहीं कर सकता जब तक तू वहां पे पहुंच नहीं जाएगा। और अगर लूत कहता मैं पहाड़ पे चले जाऊंगा तो फिर भी वो पहुंच सकता था, लेकिन दिल को क्या था, वो क्या था, नहीं मैं इस इलाके चो नहीं जाना, इतने ही रहने हैं, ठीक है। लोग वो भी लोग ऐसे ही गुनाहगार वो लोग हैं, लेकिन वो उनमें जाना पसंद करता है। कहता नहीं मैं वहां पे चले जाता हूँ, मैं उनमें रहूंगा, तू मुझे वहां इजाजत दे दे। फिर भी वो कहता मैं तेरा लिहाज करता हूँ। अगर वो कहता मैं पहाड़ पे जाने के लिए तैयार हूँ, तो खुदा ने उसको वक्त देना था और उसको पहाड़ पे जाना था, क्योंकि खुदा ने लूत को बचाना था, उसका वादा था। हालांकि खुदा ने इब्राहिम से कहा था कि इब्राहिम अगर वहां 10 निकले तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन लूत के घराने से कितने लोग निकले? 4। लेकिन फिर भी खुदा की मेहरबानी थी, उसका वादा था, फिर भी वो बेईमानों के साथ 4 लोगों को भी मारने के लिए तैयार नहीं था। वो चाहता था, क्योंकि लूत ने एक तो उस पर मेहरबानी की थी, इसलिए वो उसको बचाने के लिए तैयार था। अगर लूत उस इलाके को छोड़ना चाहता तो खुदा ने उसको छोड़ने की इजाजत देनी थी। आज कई बार हम भी अपना दिल जो है वो ठीक तरीके से खुदा के साथ नहीं लगाते, गलतियां करते रहे, छोटी छोटी गलतियों में फंसे रहते हैं और बिल्कुल टोटल उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। जी पढ़े आगे। इसीलिए उसका नाम, उस शहर का नाम सुखर कहलाया। और जमीन पर धूप निकल चुकी थी। जब लूत सुखर में दाखिल हुआ, तब खुदावन ने अपनी तरफ से सदूम और अमोरा पर गंधक और आग आसमान से खुदा ने आसमान से आग और गंधक को नाज़िल किया और सारी चीजों को क्या कर दिया? तबाह करके रख दिया। पढ़े जरा। और उसने उन शहरों को और उस सारी तराई को और उन शहरों के सब रहने वालों को और सब कुछ जो जमीन से उगा था गारत किया। सारे किसको क्या कर दिया? गारत कर दिया। आज तक वहां की जमीन जो है वो बेजान है, वहां का समुद्र जो है वो भी डेड सी कहलाता है, वो डेड हो चुका है। उसके अंदर अगर पानी के अंदर बंदा उतर भी जाए तो वो डूबता नहीं है, क्योंकि उसका पानी जो है वो मुर्दा हो चुका है। वहां की हर चीज जो है वो मुर्दा हो चुकी है, उसको डेड सी कहा जाता है। वो पूरा इलाका खुदा ने आग और गंधक से तबाह कर दिया। उनके गुनाह की वजह से आज कई बार हमारे गुनाहों की वजह से भी हम पर बहुत बहुत बड़ी मुश्किलें आ जाती है, वैसे ही जैसे तो सदूम और अमोरा पर आती है। और फिर हम गिड़गिड़ाते खुदावंद कितनी बड़ी गलती होगी जेडी साढ़े तो इस तरह हो गया, लेकिन हमें पता नहीं होता हम कौन सी गलती करे। अगर इनका गुनाह पढ़ना है तो पहले ऐसे पढ़ने आपको पता चलेगा इनकी गुनाह क्या था, इनकी बदी क्या थी। ये आगे पढ़े थोड़ा सा और। मगर उसकी बीवी ने उसके पीछे से मुड़कर देखा। अब उसकी बीवी का दिल तो पक्का ही उधर था, जैसे औरतों का। कई बार ये घर जब हमने लिया आज से तकरीबन कोई 9-10 साल पहले, तो ये घर खाली था। जब हमने खरीद लिया तो हमारा घर पीछे था। हम 2 महीने तक इस घर में आते थे, दुआ करके वापस चले। दिल हमारा कहाँ पे था? उस घर में था। हम कहते नहीं, दिल नहीं करता इधर जानते। हम बड़ी मुश्किल से हमने फैसला किया और फिर हम यहाँ पे शिफ्ट हुए। यहाँ पे लूत की बीवी को देखते हैं और खासकर औरतों का दिल उस इलाके में जहां वो रहती होती हैं, जहां वो बचपन से रहती हैं, यहाँ एक अरसे से रहे, घर को तैयार कर ले, फिर वो घर छोड़ने का उनका दिल नहीं करता। यहाँ लूत की बीवी का दिल जो था वो उसी इलाके में था, उसी इलाके में था। खुदावंद ने कहा पीछे मुड़ के नहीं देखना, भागो, दौड़ लगाओ, यहां से निकल जाओ, क्योंकि मैं तबाह करने वाला हूं, भाग जाओ यहां से। लेकिन उसकी बीवी ने बहुत बड़ी गलती की। और गलती क्या की? पढ़े जी। मगर उसकी बीवी ने उसके पीछे से मुड़कर देखा और वह नमक का सतून बन गया। वो नमक का
स्तून बन गई। जैसे उसने खुदा की नाफरमानी की, जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसी वक्त वो नमक का स्तून बन गई और आज तक वो स्तून जो है वो कायम है। जो लोग वहां पे जाते हैं वो कहते जी वो वहीं की वहीं खड़ी हुई है। उसका दिल कहाँ था? सदूम में रह गया। वो घर वहां से तो निकल आई, खुदा की बात तो मान ली, लेकिन भागते भागते फिर दिल ने कहा नहीं नहीं एक बारी मुड़ के वेखला घर वेखला किथे है। की पता खुदा ने एवं कह दिता है कुछ ना करे, लेकिन जब उसने मुड़ के देखा तो उसी वक्त नमक का स्तून बन गई। आज हमें जरूरत है कि अगर हम पुरानी जिंदगी को छोड़ देते हैं तो फिर पीछे बार बार मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। कई बार हम बार बार मुड़ के देखते हैं, पुरानी जिंदगी को खंगोलते रहते हैं, की करते रहे ऐसी पहले। जब हम देखते हैं तो इससे खुदा खुश नहीं होता। आइए एक हवाला देखते हैं। खुदा यीशु मसीह ने एक मिसाल दी। जो लोग नजात की पेशकश को मामूली समझते हैं, खुदा कहता मैं तुझे नजात दूंगा, तू यहां से निकल जा, मैं तुझे उस पहाड़ पर ले जाऊंगा, मैं इस इलाके को तबाह कर दूंगा, पर मैं तुझे नहीं मारूंगा। ये नजात की दावत थी खुदा की तरफ से, लेकिन उसने इस नजात को क्या किया? फकीर शायद समझा। आए जरा पढ़े लूका रसूल की अंजील 17 बाब। सत्रह की पहली ऐसे पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा पता चलेगा कि क्यों खुदा यीशु मसीह ने लूत की बीवी का जिक्र किया। जी पढ़े। फिर उसने अपने शागिर्दों से कहा ये नहीं हो सकता कि ठोकरें ना लगे, लेकिन उस पर अफसोस है जिसके 22 से लगे। इन छोटों में से एक को ठोकर खिलाने की बनिस्बत उस शख्स 17 बाब 17 बाब को पहली ऐसे पढ़ो। हाँ पढ़े पढ़े पढ़े। इन छोटों में से एक को ठोकर खिलाने की बनिस्बत उस शख्स के लिए यह बेहतर होता कि चक्की का पार्ट उसके गले में लटकाया जाता और वो समंदर में फेंका जाता। पढ़े बेटा 28 से पढ़े। एक मिनट। आप इसकी पढ़े 20 से। सॉरी। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि खुदा की बादशाही कब आएगी, बादशाही कैसे आएगी, कब आएगी, खुदा यीशु मसीह से सवाल किया जाता है तो उसने जवाब में उनसे कहा कि खुदा की बादशाही ज़ाहिरी तौर पर ना आएगी, ज़ाहिरी तौर पर नहीं आएगी। जी आगे। और लोग ये ना कहेंगे कि देखो यहाँ है या वहाँ है, जी क्योंकि देखो खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान है। उसने शागिर्दों से कहा वो दिखाएंगे कि तुमको इब्ने आदम के दिनों में से एक दिन को देखने की आरज़ू होगी और ना देखोगे, और लोग तुमसे कहेंगे कि देखो वहाँ है या देखो यहाँ है, मगर तुम चले ना जाना, ना उनके पीछे हो लेना। क्योंकि जैसे बिजली आसमान की एक तरफ से दूसरी तरफ नजर आती है, वैसे खुदा यीशु मसीह की आमद पर वो नजर आएगा। जी पढ़े आगे। एक तरफ से कूद कर दूसरी तरफ चमकती है, वैसे ही इब्ने आदम अपने दिन में जाहिर होगा। लेकिन पहले जरूर है कि वह बहुत दुख उठाए और इस जमाना के लोग उसे रद्द करें। और जैसा नूह के दिनों में हुआ था इसी तरह नूह के जमाना में क्या हुआ था? इसी तरह हुआ था। लोग शादियां कर रहे थे, ब्याह कर रहे थे, सारा कुछ कर रहे थे, और नूह का तूफान आ गया। ये पढ़े। इसी तरह इब्ने आदम के दिनों में भी होगा कि लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी, उस दिन तक जब नूह कश्ती में दाखिल हुआ और तूफान ने आकर सबको हलाक किया। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था, जब लूत के दिनों में जैसा हुआ था कि लोग खाते पीते और पीते थे, खरीदो फरोख्त कर रहे थे, और दरख्त लगाते और घर बनाते थे, हर काम कर रहे थे, लेकिन आसमान से क्या हो गया? आग और गंधक नाज़िल हो। जी आगे। लेकिन जिस दिन लूत सदूम से निकला, आग और गंधक ने आसमान से बरसकर सबको हलाक किया। इब्ने आदम के जाहिर होने के दिन में भी ऐसा ही होगा।
उस दिन जो कोठे पर हो, उसका असबाब घर में हो, वो उसे लेने को ना उतरे। वो कोठे से वापस नीचे ना उतरे, कोठे पे ही रहे। जी आगे। और इसी तरह जो खेत में हो, वो पीछे को जो ना खेत में लौटे। है वो पीछे मुड़ के ना देखे। जी, लूत की बीवी को लूत याद की रखो। बीवी को याद करो। खुदा कहता है पीछे मुड़ के नहीं देखना। उस वक्त लूत की बीवी को याद करो कि उसने यही गलती की, उसने पीछे मुड़ के भी देखा और नमक का स्तून बन गई। खुदावन यीशु मसीह यहाँ पे इस हवाला को काउंट करता है, बताता है कि लूत की बीवी पर नजर करो, उसको याद करो। उसने भी यही किया था। जब ये काम हो तो पीछे मुड़ के ना देखना। आज जरूरत है कि खुदा हमें निजात की दावत देता है तो हमें उसे कबूल करने की जरूरत है, ना कि हम पीछे वाली जिंदगी को देखें। मैंने पहले भी शायद एक बार ये कई बार बताया है। एक बहन थी, हम जब बपतिस्मे कर रहे थे हडियारा गांव में, हमने 38 लोगों के बपतिस्मे किए और एक बहन ने देग उतारी। उसने देग बनाई। उसने कहा जी भाई आप बपतिस्मे दे के आए, खाना मैं खिलाऊंगी। उसने खाना बनाया तो हमने कहा कि बाजी आप भी आ जाओ। कहती नहीं आप चले, मैं आ रही हूँ। जो बहनें बाद में आई उन्होंने, मैंने कहा बाजी प्रवीण को भी ले आना साथ। तो उसने कहा जी वो कह रही है कि हाले में होर गुनाह करने, हाले नहीं मैं लेना बपतिस्मा। यकीन जाने खुदा ने उसको मौका नहीं, उसको शुगर हो गई और उसका सारा जिस्म आपन में जुड़ गया। जहां जहां ऐसे बाजू पड़ी तो वहीं जाम, हर जिस्म का हिस्सा जो था वो सुकड़ गया और उसको खुदा ने ये मौका ही नहीं दिया। कई बार खुदा हमें मौके दे रहा होता है, खुदा निजात की दावत दे रहा होता है, लेकिन हम अपनी पिछली जिंदगी को भूलने की कोशिश नहीं। थोड़े जे गुनाह हमने थोड़ा जिहा होर कर ही लीए, फिर कर लांगे। खुदा थोड़ियां जिहां गलतियां हैगियां, थोड़ियां जिहा होर कर लैंदे, फिर माफी मांग ही लैनी है। लेकिन कई बार खुदा हमें फिर कोई वक्त नहीं देता। जहां लूत की बीवी को खुदावन ने कहा कि पीछे मुड़ के नहीं देखना, लेकिन उसने फिर उसका दिल जो था वो पीछे लगा हुआ था और उसने मुड़ के देखा और नमक का स्तून बन गई। आज हमें जरूरत है कि हम अपनी जिंदगियों को, पिछली जिंदगी को भूल जाएं और आगे बढ़े, क्योंकि खुदा निजात का सर चश्मा है। वो चाहता है कि हम निजात हासिल कर सके। आइए खुदा इस कलाम के वसीला से खुदा हम सबको बरकत दे। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे, दुआ करेंगे। दुआ में कोई भी रहन नहीं कर सकता, कोई बेटी बेटा कोई भी दुआ में रहन नहीं कर सकता। कुदूस मेहमान खुदा तेरे शुक्र तेरी तारीफ करते हैं खुदा पाक खुदा, आज के पाक सबा दिन के लिए खुदा पाक खुदा, इस सुख के लिए और आज की इस रोशनी के लिए खुदा पाक खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हमें से तंदुरुस्ती उम्र की दराज़ी बख्शी खुदा पाक खुदा, ताकि हम तेरे घर में आ सके खुदा पाक खुदा और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके खुदा पाक खुदा। खुदा पाक खुदा आज के कलाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, जो तेरे बंदा ने बड़ी साथ की और सच्चाई से खुदा ने हम तक पहुंचाया है। तो देख खुदा एक दूसरे कलाम हमारी जिंदगी में कायम रहे खुदा पाक खुदा। और जिस तरह खुदा पाक खुदा तूने खुदा ने हुक्म किया था कि तू पीछे मुड़ के ना देखना, और तू कहता है कि लूत की बीवी को याद रखना, इस तरह खुदा पाक खुदा तो हमें भी इस लायक बना के खुदा पाक खुदा हम खुदा पाक खुदा अपनी पुरानी जिंदगी को तर्क करके खुदा पाक खुदा हम नई जिंदगी में शामिल हो खुदा पाक खुदा। पुरानी इंसानियत को छोड़ते हुए खुदा पाक खुदा हम एक नई जिंदगी में शामिल हो खुदा पाक खुदा, और तुझसे रफाकत रखे और तेरे नाम की इज्जत और जलाल मिले। देख खुदा पाक खुदा ये कलाम खुदा हमारी जिंदगी से बेतासीर न लौटे, बल्कि ये कलाम खुदा पाक खुदा हमेशा हमारी जिंदगी में कायम रहे, ताकि इस कलाम के वसीला से ना हम दाएं मुड़े ना बाएं मुड़े, बल्कि खुदा पाक खुदा हम अपनी निगाहें तुझ पर रखें। और खुदा पाक खुदा बेशक तू निजात का बंदा है खुदा पाक खुदा, तू फतह से बढ़कर गलबा देने की कुव्वत और कुदरत रखता है खुदा पाक खुदा। ये कलाम खुदा हमेशा हम अपनी जिंदगी में कायम रहे और इस कलाम के वसीला से 30 गुना 60 गुना नहीं बल्कि 100 का 100 गुना फलाने के लायक ठहरे, और ये कलाम खुदा सबके लिए बरकत का वसीला ठहरे, और इस कलाम के वसीला से हम एक दूसरे के लिए बरकत चाहे और तेरे नाम को इज्जत जलाल मिले। इस तरह खुदा पाक खुदा तो अपने खादम को और ज्यादा गहरे मिले चलो खुदा पाक खुदा, तो और मुकाशफात के भेद अपने खादम पर खोल, ताकि वो इसी तरह तेरी ईसा को तेरे कलाम से आश्कारा करे खुदा पाक खुदा, ताकि इसी तरह तेरे डर और तेरे खौफ में रहते अपनी जिंदगी को बसर करे खुदा पाक खुदा। बाकी वक्त में भी तुम्हारी रहनुमाई बख्शना, ये सब कुछ मांग तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यूसुफ सिंह के वसीला से, आमीन। सवाल क्या था याद है? हाँ जी याद है किसी को कि नहीं? खुदा की कुर्बानी
का जिक्र ये था। खुदा की कुर्बानी का जिक्र अखबार की किताब के कौन कौन से बाब में है? ये था, ये नहीं था। जुर्म की कुर्बानी का क्या मकसद था? ये हो गया था। इसका जवाब था। जुर्म की कुर्बानी का चढ़ावा कौन कौन सा था? ये हो गया। याद है नहीं किसी को? चलें आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 275 है, हारून के बेटों नदीब और अबूहू के साथ क्या हुआ जब उन्होंने खुदा की मर्जी के खिलाफ कुर्बानी गुजरानी? कैसे? खुदा ने मारा कैसे था? मैंने ये सवाल किया। कैसे मौत वाकई हुई? बाजी परवीन, अखबार की किताब चल रही है। हाँ जी, चलिए अगला सवाल, फिर इसका जवाब मैं देता हूं। बाइबल मुकद्दस में किन जानवरों को खाने की इजाजत है? क्लैपिंग कर दें। बाइबल मुकद्दस में कौन से जानवर हैं जिनको खाना मना है? नहीं, उनका खास जिक्र है, उनके नाम लिखे गए हैं। हैं? पढ़ लिया करो ना। चलें अगला सवाल, इसमें है जी ऊंट, सफान, खरगोश, सुअर, ये खास जानवर हैं जिनका बाइबल मुकद्दस में जिक्र है। सवाल नंबर 278, बाइबल में किन जानवरों को जो पानी में रहते खाने की इजाजत है? हाँ जी, सुमैरा ने जवाब दे दिया। क्लैपिंग कर दी। जिनके पर और छिलके होते, चाने होते हैं। बाइबल मुकद्दस में किन जानवरों को जो पानी में रहते हैं खाना मना है? वो मच्छी दे अड़ गया है। हाँ जी, उच्ची बोल। हाँ, यही जवाब है। क्लैपिंग करते हैं। इजराइल से क्या मुराद है? इजराइल से क्या मुराद है? नहीं जी, करीब करीब है वैसे। चले, खुदा का चुना हुआ। क्लैपिंग कर दें इसकी।